Okay, so Sudhanshu, let's proceed ahead for your HR of HPCL. So very brief introduction from your side. Hello, sir. My name is Sudhanshu Singh, and I am from Rohtas district, Bihar. My father is a farmer, and my mother is a housewife. I have done my starting study up to intermediate from my native place itself, from Bihar. I have done my graduation from IIT Delhi in civil engineering branch. I passed out in 2018. After that, I did 1 year job in PwC, PricewaterhouseCoopers, which is a consulting company as a technical consultant. Thereafter, I'm preparing for PSUs. This year, I also did a job in Stellium Consulting Company on a contract basis for 6 months in Tosca Software. My BTP project is working on the numerical analysis of steel and RCC structures, and also I have done a project during my college years on the working on a speed density model on a heterogeneous traffic. Like there are various speed density models as of now, so we are working on the drawbacks and what are the properties of that. My hobby is playing and watching cricket and talking with friends. Thank you. Okay, आपने कब ग्रेजुएशन की और कहाँ से ग्रेजुएशन की है सुधांशु? 2018 from IIT Delhi, civil engineering. IIT तो Delhi. आपको वहां से जो जॉब लगी वो आपने कितना टाइम किया जॉब? 1 year, 11 months. 11 months. तो फिर उसको छोड़ क्यों दिया? Sir, actually, I was there as a technical consultant, and I was doing coding in ABAP language. It is basically a business language. So the job was good, the company is also good, but I never had that much interest in coding, and means I was not fully satisfied with the work that I was getting there, and that's why. And also, the one main motto I joined that job because of the I want to do. I always want to prepare for PSUs, but there were some financial constraints at that time. So I had to join the job so that at least when I come to prepare for PSUs, I have that financial backup. तो अब अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हो आप? प्रेजेंटली भी जॉब कर रहे हो? No, sir, I left in July. Now I am preparing for this PSUs in Delhi. PSUs only. So why you are interested in public sector? Why not private sector? Private sector is also equally good. Private sector is equally good, but I always had the dream to go in PSUs because of the job stability that they provide, the work culture that they provide, and also I also want to work in some technical domain. Like I always doesn't have that much interest in coding and that all. So I thought that तुम तो आईआईटी के ग्रेजुएट हो, तुम्हें जॉब इनस्टेबिलिटी का क्या है? तुम्हें तो जॉब्स की कमी थोड़ा है, तुम्हें तो काफी जॉब्स मिलेंगी. Why you worry about stability? In civil engineering, I don't think there is that much scope in private sector. Like even during our placement, there were only 2 companies that are from technical domain in civil engineering, and even their salary package was not very good. So, okay, so आपको कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज कम है, so you want to join public sector. The stability factor is there, and the exposure that we get is much more than what we get from the private sector. अच्छा, अगर ये HPCL वगैरह जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है पब्लिक सेक्टर का, तो अगर HPCL प्राइवेटाइज हो जाता है फ्यूचर में, तो सुधांशु? So basically, like I said, now the exposure, the work that we get here, that stability. Even see the first of all, I think HPCL is one of the biggest PSU of India. It is one of the most profit-making company, and even it is a subsidiary of ONGC. So I don't think there is any there will be any logic behind privatizing it. And also, if it is done, then the basic motto behind privatization is just changing the managerial position of the companies if that is not working fine or there is something. And even it will be some like this investment only. I don't think the whole privatization will be done. And even that is the work culture, the environment that you get here, the exposure that you get here, that won't be changed. So the work that I want to get here. तो क्या आप क्या जानते हैं HPCL के बारे में, क्या जानते हैं? It is one of the Maharatna company. It is also a subsidiary of ONGC. It was founded in 1974, and it has business in various sectors like retail, refinery sector, lubricants, aviation fuel, and gas pipelines. It has basically 2 main refineries in Mumbai and Visakhapatnam with combined capacity of more than 15 million metric tons. And one more is they are building in Barmar, Rajasthan. Okay, Sudhanshu. So let me give you the feedback of this part first. Yes. एक तो यार तुमने ना अपने इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत सी चीजें मिक्स कर दी. जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट्स की भी मेंशन किया, जॉब का भी मेंशन किया, हॉबीज का भी मेंशन किया,
इंट्रोडक्शन में वहां पे इंट्रोडक्शन खत्म करो जहां से नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हो कि आए। जैसे मतलब ये मेरे से पूछना भी था, जैसे मेरी हॉबीज जो है प्लेइंग एंड वाचिंग क्रिकेट एंड टॉकिंग विद फ्रेंड्स, जो मेरी हॉबी है रियल वही है, बट ये थोड़ी कॉमन टॉपिक हो जाती है, तो मैं इसको बोलूं कि ना बोलूं वो इंट्रोडक्शन? बोलना चाहिए आपको, वहां पे ब्लफ नहीं करना, जो आपका कॉमन है वही बोलो बस। तो फिर वही, तो फिर अगर क्वेश्चन बनाना जैसे आप बोले कि वहां से इंट करो जहाँ पे क्वेश्चन, तो मतलब इनसे तो मतलब हाँ, बिल्कुल ही इनसे रैंडम। मैं बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आप जॉब पे छोड़ो ना, जॉब से आएगा क्वेश्चन। तो जो पैटर्न मैंने फॉलो किया, जैसे पहले मैंने अपने बारे में बताया, फिर फैमिली के बारे में, फिर अपनी पढ़ाई, और फिर जॉब, अब फिर हॉबी, और फिर जॉब। नहीं, हॉबी बतानी नहीं है आपने, हॉबी वो पूछेगा अलग से, अच्छा। वो हॉबी अलग से पूछेगा। आप अपनी इंट्रोडक्शन में अपने बारे में बता दो, अपना कॉलेज कहाँ से ग्रेजुएशन किया ये बता दो, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन छोड़ दो ले जाके कि सर मैंने जॉब किया 1 साल यहाँ पे, बस और यहाँ जो पे छोड़ दो, यहाँ छोड़ और दो। जो इस साल सर जो किया था वो भी बता दो। इस साल इस आपने साल भी क्या जैसे, किया था, वो मैं पूछ रहा था आपसे, क्या किया था इस साल? इस साल में मैंने 6 महीने मतलब एक आईटी कंपनी में ही ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब किया था सर, वही फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के थोड़े मतलब कोरोना के चलते दिक्कत हो गई थी, तो मुझे जॉब करनी पड़ी थी हाँ, तो नेटोस का ये दो सॉफ्टवेयर। चीज बता सकते हो आप कि सर मैंने जॉब किया है 1 साल, और इस साल 6 मंथ्स के लिए मैंने एक और जॉब किया था, वो इस डोमेन में था, बस यहाँ पे छोड़ दो ले जाके। अच्छा, जो रीजन दिया था जॉब छोड़ने का वो सही है? उसमें देखो कुछ तो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आपकी, क्योंकि आप उसमें ये आप ये बोलो कि सर वो जॉब सिविल इंजीनियरिंग का नहीं था, मैं सिविल इंजीनियरिंग की डोमेन में काम करना चाह रहा हूँ, और मैं स्पेशली कोडिंग वगैरह की डोमेन में मैं काम नहीं करना चाहता सर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जब प्लेसमेंट हुआ था तो सर कोर सेक्टर की कंपनीज बहुत ही कम आई थी, तो कोर सेक्टर में मेरे को जॉब नहीं लगा था, तो मैंने, क्योंकि जॉब मेरे को लेना जरूरी था, इसलिए मैंने कोडिंग वाला जॉब उठा लिया, लेकिन 1 साल। अच्छा, तो ये जो रीजन दिया था फाइनेंशियल कांस्टेंट वाली, वो ठीक है ना, कि मतलब मुझे लेना उस टाइम जरूरी था? कोई बात नहीं, आप बोलना कि सर मेरे को जॉब करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, लेकिन ये जो जॉब है इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, बिकॉज इसमें कोडिंग का जॉब है। और ये मत बोलना कि मेरे को कोर सिविल इंजीनियरिंग में जॉब करना है, क्योंकि मार्केटिंग में भी आपको डाल सकते हैं ना, अगर बोलता है हम तो आपको मार्केटिंग में डालेंगे। मैं सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में। हाँ, ऐसा मत बोलना सिविल इंजीनियरिंग डोमेन में जॉब करना है मेरे को, ये मत बोलना। तो फिर जैसे आपने अभी बोला कि मैंने उसमें क्यों छोड़ा, तो हाँ, तो आपने बोलना कि सर वो कोडिंग का जॉब था, अब तुम्हें एचपीसीएल कोडिंग थोड़ी करवाएगा। कोडिंग में, हाँ ठीक। बोलना सर वो कोडिंग का जॉब था और मेरे को उसमें जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो ओके। फिर मैंने मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो मैंने देखा पब्लिक सेक्टर की जॉब में काफी अच्छा ग्रोथ भी है सर, और अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं, और आपको काफी सीखने को भी मिलता है, और ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन उसमें है, तो वो उसके लिए फिर मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। जॉब मैं इसलिए करता रहा बिकॉज सर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, मेरे को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए जॉब करना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने 6 महीने और भी जॉब किया, लेकिन वो ओनली टू सर्वाइव, उसमें करियर करने के लिए नहीं, लेकिन सर्वाइव करने के लिए, ऐसे आप बोलोगे। समझ गए सो मैं, सुधांशु? यस सर। तो यहाँ पे बात अपने ले जाके छोड़ दोगे आप, ब्रीफ करो, इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखो, और अभी कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं आ रहा सुधांशु जो होना चाहिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा पेस स्लो करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, और प्रिसाइज बात करो। अभी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, थोड़े से नर्वसनेस में हो, और बहुत कुछ बोल रहे हो, ये है नटशेल में। ठीक है, इंप्रूव करो विद मोर एचआरस। ओके।